Assalamualaikum students, hope that you'll be fine. Today I am going to teach you present indefinite tense. How can we change present indefinite tense from active voice into passive voice? Before this, I have taught the usage of passive voice, where and when do we use passive voice sentences, and definition of active voice and passive voice. So let's move towards our lecture. First here we use a verb. In present indefinite tense, we use first form of the verb with s, es, I, es. Only with he, she, it and singular noun. Not with I, we, they and plural noun. When we are going to change the word from active voice into passive voice or present indefinite tense. So here we use third form of the verb. Third form of verb. In all passive sentences we use third form of the verb. ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, जितनी भी एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस है उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं. फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है. इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एज यू नो वी आर यूजिंग डू एंड डज. डू एंड डज एज और हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. डू को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और डज को डू वी यूज विद आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन. डज वी यूज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन. So let's move towards passive voice. When we are going to change the helping verb do does from active voice into passive voice, so we use is, are, am as a helping verb in the passive sentences of present indefinite tense. You know that is we use with he, she, it and singular noun. Are we use we, they, you plural noun. Am use with only I. Then we talk about simple formula. First we will make the simple formula, simple structure, then sentence will be easy. Sentence will be a piece of cake for us. Subject plus first form of the verb with s, es, I, es plus object. मैं बता चुका हूं, I told you that we change. When we are going to change from active voice into passive voice, so subject change into object, object change into subject. Then this object will come first in passive sentence, subject will come at last. Object plus helping verb plus third form of the verb by. I told you that we use by after third form of the verb in passive sentences. By, then we use subject, then we use subject in passive voice. So how can we make sentence? Subject है, suppose we take example of he, first form of the verb speaks, we use only s, speaks. He speaks, वो इंग्लिश बोलते हैं या बोलता है, सही है. He speaks English. Subject plus first member with s plus object. So how can we change? यहाँ पे हमारे पास जो object है वो क्या है? English है. तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला क्या लिखना है? English. अब English डिसाइड कैसे कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को? इस इस्तेमाल करना है आर या एम. हम लोगों ने इसको देखना है चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर. अगर सिंगुलर हो तो फिर उसके साथ इज. इंग्लिश इज. अब स्पीक का जो थर्ड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? स्पोकन. सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म क्या है? स्पोकन. इंग्लिश इज स्पोकन, देन वी यूज बाय बिफोर एजेंट. इंग्लिश इज स्पोकन बाय. ही का हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम. वो इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश उसके जरिए बोला जाता है. यहां पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अननोन है. काम की चीज पे हो रहे, इंग्लिश पे यानी ऑब्जेक्ट पे. फिर इसके बाद हमारे पास नेगेटिव फॉर्मूला है. नेगेटिव फॉर्मूला में हम लोग लफ्ज नॉट का ऐड करते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
अब इसका सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? सपोज कोई और प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, शी डज फिर नॉट कुक फूड। शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है। ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में? सब्जेक्ट यहां पे, तो वहां पे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट है, पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हमें पता है ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, फूड। फूड लिख लो, फूड, फिर हेल्पिंग वर्ब फूड के साथ हम लोग इज, फिर उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म हम लोगों ने क्या लिखना है, कुक्ड। आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज बाय। अब देखना, शी है हमारे पास, शी विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, शी विल चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस हर, शी का क्या है, हर। वो खाना नहीं पकाती है, खाना उसके जरिए नहीं पकाया जाता है। ये रही हमारे पास सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मल सेंटेंस एंड इनफॉर्मल सेंटेंस। It is too easy, it's quite easy. Just try to understand. I need your concentration and attention. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने से पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। जब हम लोगों को साख्त स्ट्रक्चर समझ आ जाए तब सेंटेंस बनाना काफी है। सही है, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। जब हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लेके इसका स्ट्रक्चर साख्त बनाए तब सेंटेंस बनाना काफी आसान है। हेल्पिंग वर्ब, डू डज, फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसके मुताबिक जैसे हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला के तहत हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसको चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मिसाल हम लोग डू लेंगे, सब्जेक्ट दे प्ले हॉकी। डू दे प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलते हैं? अब इस सेंटेंस को एक्टिव से पीसीओएस में कैसे चेंज कर सकते हैं? इसके लिए भी इंट्रोगेटिव फॉर्मूला का होना जरूरी है। यहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो हमारे पास इस आरएम में, पीसीओएस में, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर बाय है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को कैसे डिसाइड करना है? डिसाइड हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को देके, यहां की एक्टिव की ऑब्जेक्ट को देके फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। आगे बात समझ। हॉकी है हमारे पास, सिंगुलर है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इज हॉकी, इज हॉकी। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। हिज हॉकी प्लेड बाय। अभी दे है ना, दे का हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो देम है। ये रही हमारे पास इंट्रोगेटिव फॉर्मूला विद सेंटेंसेस। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मल फॉर्मूला है। फॉर्मल फॉर्मूला को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सवाल भी पूछते हैं और लफ्ज नॉट का भी आता है। यहां पे हम लोगों ने कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। डज अली नॉट राइट अ लेटर? क्या अली खत नहीं लिखते हैं? अब इसको पीसीओएस में कैसे चेंज कर सकते हैं? सही है, पहले हम लोग इसकी फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को दे के फिर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करना है। आ लेटर है तो यहां पे इज आएगा, इज अ लेटर नॉट। फिर राइट का थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन बाय। फिर हमारे पास यहां पे क्या है? अली को अली ऐसे ही लिखना है। ये आगे बात समझ। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मल फार्मूला है, सॉरी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल फार्मूला कैसे बनाते हैं? इनफॉर्मल फार्मूला में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को इकट्ठा लिखते हैं, जैसे इज नॉट इजंट हो गया है, डू नॉट डोंट हो गया है, डज नॉट डजंट हो गया है, आर नॉट आरंट और एम नॉट एंट। यहां पे हम लोग इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पे हम लोगों ने इन दोनों को इकट्ठा लिखना है। जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, तो डू और नॉट को इकट्ठा लिख ले, डोंट बन जाता है डोंट वी प्ले फुटबॉल, डोंट वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं? ये रही हमारे पास फॉर्मल सेंटेंस एक्टिव वॉइस की। अब पैसिव वॉइस में हम लोगों ने क्या करना है? पहले हम लोगों ने इसकी फॉर्मूला लिखना है, इनफॉर्मल फार्मूला। वहां पे भी सेम एज इट लिखना है, सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट की बजाय सब्जेक्ट लिखना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखना है यहां पे हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में इज आर एम। यहां पे इज नॉट को लगा लेते हैं इजंट, इजंट शी, सॉरी इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं ना। इस सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं? फुटबॉल है ना, तो हम लोग वहां पे इज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यानी इजंट फुटबॉल, इजंट फुटबॉल प्लेड बाय वी है। वी का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या है? अस। इजंट फुटबॉल प्लेड बाय अस। सो ये रही हमारे पास आज की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। डिटेल्ड है, उसमें सब कुछ है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल फार्मूला, नेगेटिव फार्मूला, फॉर्मल फार्मूला, इनफॉर्मल फार्मूला, each and everything. If you have any questions, so you may ask me in comment section. Thanks for watching my video.